Warm greetings, dear audience. Welcome to the 17th episode of Darling's podcast. I'm Yashasvi Rai along with my co-host Ishika. And today, among us, we have Varanasi's renowned business personality, Mr. Siddharth Gupta, who is the CEO and Managing Director of Banaras Beads. Banaras Beads is India's largest manufacturer of glass beads, fashion jewelry, and accessories. So, to start with, please tell us about your journey after 12th grade. Well, after completing my schooling until class 10th, I was in Mayo College, Ajmer. After that, I went for my graduation to University of Wolverhampton in UK, and I learned glass science, how to play around it with glass. Glass is a very flexible material, so and my business was at that time was more inclined towards glass. So in order to do forward and backward integration, I went there for my further education. So I did my graduation from UK and then I came back to Varanasi. सर ये आपने बहुत जल्दी में हम लोग को सारी चीजें बता दी. हम लोग को फन स्टोरीज आपकी चाहिए कोई स्कूल टाइम की. Fun stories. Well, in fact, 11th and 12th was my best time of my life. I met my soulmate. अच्छा ये मुझे नहीं पता था. नहीं जी सर. In fact, Shivani Bhavi, and I met her for the first time when I was in class 11th, and she was in class 9th in Sunbeam. And that's how we got to know each other. And the rest is history. And, we have been happily married ever since. Thank you so much. और कॉलेज की कोई स्टोरीज? College was, the graduation was a very tough time for me. In fact, I had done my graduation from, schooling from Mayo College. So I had a kind of a understanding about the boarding life and to live alone and to live independently. But when I went to UK, I had to cook myself. I had to, adapt myself in a new atmosphere altogether. And in fact, I did not know how to cook at all. So I used to call my mother, and that time there were calling cards, like the cell phones were very expensive. So, cooking and trying to live alone was very, very different. And I used to get a very limited pocket money. Like my father used to give me £25 per month, which was very difficult at that time to manage because he wanted me to, because if you have a student visa, then you have a limited number of hours where you can work in UK. So I used to work the night shift in a butter factory called Dairy Crest, where I used to work from 6 p.m. in the evening to 6 a.m. in the morning. And my duty was to pack butters. So the butter used to drop from a machine and we used to pack the lid and put the tape around the carton and stack it. So I worked for good 6 months in a butter factory. And then I was getting like, that smell was a little getting carried away of buttery all night. And probably my entire body started smelling like butter. So I thought, to move on and then to make money, to support my pocket money. That time I started doing taxis. So I was a taxi driver in UK. I used to do a lot of drop off from Birmingham Airport to Heathrow Airport or to Manchester Airport, where, in a time interval of 4 hours, you could make 60 to 70 pounds. Whereas working from 6 p.m. in the morning to 6 a.m., I used to make 66 pounds. But, it was a faster money. And then you used to also get tips from customers. So it was, coming from a very established family, living in the kind of luxury at home, suddenly you are a taxi driver. So it wasn't easy, but my father did taught me good lessons and hardship of life. And so that probably he wanted to infuse me with the thought process that, how important in life is to work hard and support yourself. Because when you are born in an established family,
it is very difficult for children to realize nothing is easy in life. So that was a very good lesson, and I made a lot of friends there. I remember I used to call Shivani back home. I used to buy. There used to be a £5 calling card, and where there was a 0800 number on calling booth, and you can only talk to 30 minutes. So that is how the life was. But it was very good, and I enjoyed my graduation time, and I still miss it. In fact, I do keep on going to London twice or thrice a year, and at times I do go back to my college and try to recall all my old memories there. कोई एक चीज अगर आप चेंज करना चाहें उस टाइम से, अगर आप अपने पुराने यंगर सेल्फ को बता सके वो चीज, कोई एक चीज जो चेंज करना चाहे उस समय, I don't think so. I want to change anything because there have been few instances which I may not have liked, but it did taught me a lot of things. So there was pros and cons. So I'm happy, and the God has been kind to me. So whatever my schooling life and my college life has offered me, in fact, I would rather keep it as it is because I have some beautiful memories. Maybe one thing was, since you have asked this question, my time in Mayo was very tough. ऐसा क्यों सर? Because at that time in Mayo College, there was a lot of Rajput culture and a lot of seniority. So the atmosphere, now Mayo has become very good. It is one of the finest public schools. But at that time, there was a lot of Rajput culture influence of all the Maharaja's son studying in Ajmer, and I was from UP. So there was a kind of a disconnection. But apart from that, and having said that, it's not about probably that has also taught me quite good and how to be tough. In fact, how to be rough and tough. So everything gives you some kind of a teaching. And so what Mayo taught me to become a rough and tough, and probably if had that Rajput culture not been there, which I did not like, I would not have been so much rough and tough in my life as what I am today. आपने कभी ये चीज सोची है, मे बी आपके वो एक्सपीरियंसेस जो स्कूल टाइम में थे आपको रफ एंड टफ बनाने में, देन कॉलेज टाइम में व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड आप तभी इतना ज्यादा थ्राइव किए? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. वो रिलेशन एकदम आप सही बोल रहे हो. इट इज ये एकदम सही बात है कि अगर मेरे को मेयो में इतनी टफ लाइफ नहीं मिली होती तो I would have been a very shy person, or maybe not. इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हम लोग को सबसे ज्यादा पसंद है. तो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता. और आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट नाइट इन यूके. मेरे को जब मैं रात को सोने, पापा उस समय मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा था. सो माई फादर वॉज इन यूक्रेन. सो मेरी फ्लाइट बर्मिंघम की थी, तो इट वॉज वाया फ्रैंकफर्ट. तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं अकेले फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन करा के, और मैं फ्रैंकफर्ट फ्लाई कर रहा था, एंड पापा की फ्लाइट यूक्रेन से फ्रैंकफर्ट आ रही थी. तो हम लोगों को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे मिलना था. और जब मैं फ्रैंकफर्ट में लैंड किया तो पापा की फ्लाइट लेट हो गई. तो मैं 2-3 घंटे एक फर्स्ट टाइम अकेले, मतलब एट सच यंग एज आई वाज अलोन एट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, और ट्राइंग टू फिगर आउट ये क्या दुनिया है. मतलब यहाँ पर सब लोग जर्मन में बोल रहे हैं और बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं. ऑल्दो ठीक है, इंग्लिश तो आती थी, लेकिन वो जो एक फीलिंग थी नॉस्टैल्जिक की, मैं इस दुनिया में कहाँ पर आ गया हूँ. हाँ, तो बड़ा वो था. और इनफैक्ट हम लोग फिर हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जब पापा मेरे, तो हम लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी फ्रैंकफर्ट से बर्मिंघम की. तो बर्मिंघम गए, और उसके बाद हम लोग, मेरी एक स्कूल की बेसिकली वहां पर रेसिडेंशियल हॉल्स थे जिसमें मेरा एक रूम था, और तो उसमें पापा ने सब मेरी हेल्प करी सब सेटअप करने में. एंड ही फ्लू, हिज फ्लाइट वाज नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग. सो प्रॉब्ली एक सिंगल बेड हुआ करता. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मी एंड माई फादर शेयर्ड द बेड टुगेदर.
एक सिंगल बेड पे रात को सोए, और जब सुबह पापा 8 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले मेरे को छोड़ के, तो वो वैसी फीलिंग कि मैं इस दुनिया में, इस नई कंट्री में कहाँ आ गया हूँ. So that किसी was, को नहीं जानते और किसी को नहीं जानते. So that was kind of a challenging. But now, had I not did my schooling from Mayo and experienced that 6 years of my life, probably I would have given up on the second or third day. But I survived and I'm here today. Yeah, thank you, Veera. Thank you. So, sir, I'd like to know, like, from your experience, that how could one carve out their own niche in a already successful business? देखो, there is nothing in this world called successful business. I don't believe in this terminology. Nobody has successful business. You have a good business today, but you do not know how the business will take you tomorrow. So you have to keep on striving hard every day. And in fact, now in the fast moving world, especially जब से last 10 years, 15 years से जब से कंप्यूटर साइंसेज ने इतनी तरक्की करी और मोबाइल फोन्स आ गए, फास्ट कनेक्टिविटी हो गई, इंटरनेट आ गया, अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो गया. So you have to keep on improvising yourself every day. If you do not do it, you will lag behind. So never think in your life that you have become successful. ये कभी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज अगर आपने ये सोच लिया कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो आप उसी दिन से पीछे होना चालू हो जाओगे, बैक गियर लग जाएगा आपकी लाइफ में. सो यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन स्ट्राइविंग हार्ड टू लर्न एंड अडैप्ट न्यू थिंग्स एंड पुट इट इन योर बिजनेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई जॉइन माई बिजनेस, मेरी फैक्ट्री में उस समय 2014 में वी वर स्टिल इन दैट विंडोज 95 एरा. तो और लेकिन विंडोज 2000 लॉन्च हो चुका था. उसके अंदर मतलब उस समय हमारी फैक्ट्री में किसी को 2004 में एक एक्सेल के फॉर्मूलेज लगाने नहीं आते थे. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि कैसे एक टैबुलेशन शीट बनती है, कैसे कॉस्ट शीट बनती है. सो थिंग्स वर हैपनिंग, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क. सो आई चेंज्ड इट इनटू the latest systems. Then I put on our own ERP systems in companies so I can track things on my own PC. Then फिर अब आज तो हम लोग उसको इतना ऑनलाइन लेके आ गए हैं कि no matter wherever I am in the world, I can actually monitor my factory by being wireless. Wirelessly, I can just track everything what is happening in my factory. So never think you are successful. अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें अगर आप इनोवेटिव नहीं हो, नए आइडियाज लेके नहीं आ रहे हो, जैसे हम लोग बीड्स बनाते हैं, फैशन ज्वेलरी बनाते हैं, इट इज समथिंग विच इज वेरी फैशन ओरिएंटेड आइटम्स. इफ आई डू नॉट कीप ऑन पुटिंग द हार्ड वर्क एंड कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स बाय बीइंग इनोवेटिव, देन 1 साल बाद 2 साल बाद मेरा कस्टमर बोलेगा कि आप क्या नया लेके आए हो. So it is a very creative product, a very fashion oriented product. So you have to be on your foot, on your heels all the time in order to keep being successful. So there is nothing called own niche of being a successful business. So suppose I want to start a business today in this time. Right. So what sector do you think is the most promising? Okay, that's a wonderful question. What is the population of this country? 40 crores right now? Yeah. And what is the population of the entire planet? 8 billion. Yes. So that is 800 crores. Yes. So basically, we are 20 to 22% of the entire population in this planet. So out of 140 crores, can you tell me how many people are under the age of 40? I think the majority. Oh, can you tell me a percentage? मतलब कितने I होंगे? don't have this. Okay, so I'll tell you. Basically, anywhere between 50 to 60 crores. That is, 60 crores is 600 million. So 600 million people are under the age of 40 in this country. And the world's biggest market
the most powerful country on this planet is United States, जिनकी पूरी population 330 to 350 million है. That means उनके पास सिर्फ 35 करोड़ लोग हैं जो आज दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, सबसे पावरफुल कंट्री है. और हमारी जो यंग यूथ है वो 60 करोड़ की है. और उन 60 करोड़ में जो नई पॉपुलेशन है वो सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं. तो हमारा जो मार्केट है वो अमेरिका से बड़ा मार्केट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी बिजनेस you do in this country will be good because we already have a lot of customers for everything. Especially, और मैं अभी सीनियर सिटीजन्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. जो मैं आपको 60 करोड़ बात कर रहा हूँ वो यंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ. हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि मिडिल एज भी है, 50s वाले भी हैं, 60s वाले भी हैं, 70s वाले भी हैं, 80s वाले भी हैं, तो वो लोग भी बाइंग करते हैं. तो हम लोगों के पास मार्केट की कमी नहीं है. योर क्वेश्चन वॉज कि कौन सी क्या ऐसा बिजनेस करें जो कि सक्सेसफुल होगा. सो आई थिंक सो द सेफेस्ट बेट वुड बी अ सर्विस इंडस्ट्री. एनीथिंग विच कम्स अंडर सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? सर्विस इंडस्ट्री में जैसे स्कूल्स हैं, यंग बच्चे हैं, तो एजुकेशन लाइन इज वेरी गुड. सेकेंड, सिंस आपके पास इतनी यंग पॉपुलेशन है, जनरली यंग पॉपुलेशन काफी ट्रैवल करती है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत अच्छा है. अगेन अ सर्विस इंडस्ट्री. फिर मेडिकल. मेडिकल में क्योंकि अगर यंग पॉपुलेशन है तो लोग बीमार पड़ेंगे, तो मेडिकल लाइन इज वेरी गुड. एनीथिंग टू डू विद मेडिकल. मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा है, लेकिन जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है बहुत ज्यादा, उनको मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा सा डिस्करेज करूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट की बहुत कैपिटल इंटेंसिव होती है. तो जब तक उनके पास पीछे से फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, उनको मैन्युफैक्चरिंग की रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में ट्राई करोगे तो दैट इज द सेफेस्ट बेट टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर. और ये एक आजकल जो नई फील्ड आ रही है, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर लैब्स, साइंटिफिक रिसर्च, और ये तो बायोकेमिस्ट्री, तो मतलब स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाओ, क्योंकि इंडिया में फील्ड्स की कमी नहीं है. लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग बहुत सॉलिड नहीं है तो सर्विस इंडस्ट्री में ट्राई करो. आई एम श्योर दैट दैट हैज द बेस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल. आई वुड रादर से दैट. So, sir, I'd like to know that what do you think, like when you wake up in the morning, what makes you so motivated and you keep on striving and achieving more? What is that one well, now that you've achieved everything, almost everything. Almost. देखिए, मतलब सर बेसिक एक नॉर्मल लेमैन के हिसाब से सोचिए, देन जो भी आपको देखता है, दे नो यूर अ सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है. एंड एट दिस टाइम एंड एट दिस एज, ठीक है, आई मीन आई थिंक यू आर अभी भी आप 40 टच किए ही है, तो इसीलिए अब क्या मतलब मोटिवेट करता है? तो व्हाट कीप्स यू गोइंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये सोचो कि okay, when I wake up, I'm a very early riser and a very early sleeper, and my friends hate me for that because मेरे को रात को 9:30-10 बजे तक नींद आने लग जाती है. मतलब 10 o'clock तो after 10 it is a struggle for me to be awake. In fact, अगर कहीं शाम को जाना भी होता है तो मैं दोपहर में आके, मेरे को 1-2 घंटे जैसे छोटे बच्चों को सुलाया जाता है, मैं सोता हूँ जिससे कि मैं रात को जग पाऊं. So when I get up in the morning, of course I try to do a little bit of walking. अभी कुछ 1-2 महीने से बंद है, लेकिन अभी वापस स्टार्ट हो गई है पिछले 1 हफ्ते से. So generally I get to do morning walk, and that morning walk I always think, because that is a time when nobody is disturbing you. You are on your own. That is like my me. This बोलते हैं ना me time. So that is my me time. So I'm just thinking कि how is my day? मतलब I keep on thinking how I have to plan my day and what are the things I have to do. तो मैं already मेरे दिमाग में वो चीज बैकग्राउंड में चल रही होती है. मोटिवेटेड इसलिए रहता हूँ कि the bigger you do the business, the more number of people you are employing. For example, right now in my factory there are more than 600 people working. और जो हमारे बनारस में आसपास जो मोती के कारीगर हैं
करीब करीब 8 से 9,000 मोती के कारीगर हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर 7 से 8,000 मोती के परिवार प्लस उसके अंदर हमारे जो स्टिंगिंग करते हैं, गुथाई मतलब जो माला की स्टिंगिंग करते हैं, तो उसके भी ठेकेदार हैं, तो और प्लस 600 एम्प्लॉय। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक परिवार में हम एवरेज 3 लोगों को भी जोड़ लें या 4 को भी जोड़ें, तो मेरे को लगता है कि मेरे बिजनेस करने से 8 से 9,000 चूल्हे जल रहे हैं। और 8 से 9,000 चूल्हे जलने का मतलब, मेरा कहने का मतलब, ये बहुत ओल्ड वे ऑफ पुटिंग इट अप है, लेकिन 8,000 to 9,000 फैमिलीज सब डिपेंडेंट है मेरे ऊपर और मेरे बिजनेसेस के ऊपर। तो मेरी उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड, तो मैंने तो मतलब आई हैव सपोर्टेड माई सेल्फ, मैं तो सरवाइव कर जाऊंगा, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा? सो मेरे फादर भी यही मेरे को बोलते हैं, और मेरे की लाइफ में मेरा सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये है कि जब हमारी कंपनी का गेट खुलता है तो उससे 8,000 चूल्हे जलते हैं। तो एक दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन आई हैव, एंड आई वांट टू बाय द टाइम आई हैव रिटायर्ड, ये नंबर ऑफ चूल्हे को मेरे को बढ़ाना ही है, घटाना नहीं है। सो दैट इज अनदर मोटिवेशन कि हम कैसे और नंबर ऑफ चूल्हों को बढ़ा पाए। सर, इनके क्वेश्चन में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, फॉर समवन माय एज, आई एम 30 years old, ठीक है, आई लुक अप टू गाइज लाइक यू। आप हो गए, भागीरथ भैया हो गए, आप लोग को रोहन भैया भी हो गए, इन माय लाइन। तो आई लुक अप टू गाइज लाइक यू जो मेरी एज से आई थिंक 10 years बड़े हैं। देन जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इनकी तरह बनना है। इनकी एज 10 years from now आई वांट टू बी लाइक देम। आपके लाइफ में कौन है ऐसा, whom do you look up to? I've always looked after my father. In fact, जब मैं बिजनेस में आया था तो बोलते हैं ना कि मेरा ये कॉम्पिटिटर है, मेरा वो कॉम्पिटिटर है। मेरे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर मेरे फादर हैं, क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया, मैं अकेला बेटा, मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, तो इन दोनों बहनें वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में। तो जब मैं आया तो सबको ये एक्सपेक्ट, और मेरे फादर ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो सब लोग मेरे को मेरे फादर से कंपेयर करते कि अरे अशोक भैया ने तो इतना नाम कमाया, इतना बिजनेस किया, ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, क्योंकि कहीं ये बिगड़ गया तो सब डुबो देगा। सो एक सबसे पहले मेरे को कंपेयर किया जाता, तो ही वॉज माई बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। और शायद उसी कंपटीशन ने, और जो लोगों का, जो एक समाज का या एक सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है आपके ऊपर, व्हेन दे कंपेयर योरसेल्फ विद योर फादर, सो दैट गिव्स यू अ मेंटल ट्रॉमा कि यार अगर मैंने कुछ गलत कर दिया या मेरे से कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। So I have always treated my father as a competitor, and I've always tried to outrun him on whatever he did, and that is what I'm still trying today. अभी तक तो उनसे जीत नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर पापा का ही आशीर्वाद रहा तो एक दिन उनसे आगे निकलने की कोशिश करूंगा। So I've always he has been my biggest motivator. In fact, उनकी एक saying है बहुत important, जो हमेशा बोलते हैं कि वर्क लाइक अ डोंकी एंड लिव लाइक अ किंग। सो गधों की तरह काम करो और राजाओं की तरह रहो। सो दैट इज व्हाट कीप्स मी अनदर फैक्टर टू बी मोटिवेटेड, दैट आई वांट टू, व्हेन आई लीव फॉर वर्क, then I become donkey, and then I want to work as hard as donkey, so that when I come back home I'm living like a king. मैं आपको अंकल की एक स्टोरी बताऊं। मेरे मामू दीपक मामू मुझे बताए द स्टोरी, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। दिस 80s and 90s की स्टोरी। तो कोई भी जो पूरा वाला एरिया ना, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, मेरे घर के बाहर वाला जो पूरा एरिया है, उस टाइम कोई भी पूछता था 9-9:30 के आसपास की टाइम क्या हो रहा है, तो लोग पता है टाइम कैसे बताते थे कि अशोक अंकल की गाड़ी 9 o'clock डॉट यहाँ से गई, तो कहते अच्छा 10 मिनट 9-10 हो रहा होगा। ही वॉज दैट पंक्चुअल। Exactly. एंड वो एक लेसन की तरह मुझे बता रहे थे। देखो, यही तो होता है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पापा का थ्योरी अलग रहती थी। उनका ये रहता था कि वो ऑफिस की चाबी लेके जाएंगे, सारे एम्प्लॉयज आएंगे,
और वो ऑफिस की चाबी बंद करके अपने साथ लेके घर आएंगे। तो उसका उनका ये मोटिवेशन था कि डिसिप्लिन, हमारी फैक्ट्री 8:30 खुलती थी, तो जो तेरा टाइमिंग है, पापा की गाड़ी 8:05 पे 8:05 पे रथ यात्रा से मुड़ती थी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एस्टेट। तो लोग घड़ी मिला लेते थे कि गुप्ता जी जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर आप ओनर हो कि अगर आप ही लेट ऑफिस पहुंचोगे तो आपके मैनेजर्स, आपके एम्प्लॉयज भी लेट पहुंचेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ on an average, if my employees are reaching 5 minutes late, 8:30 खुलता है, 8:35 पहुंच रहे हैं, तो 5 minutes लेट हो गए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? अगर 600 हैं, so 5 6 30, so 3000 minutes are lost। मतलब आपने 3000 मिनट खो दिए वर्किंग के। अब आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, अगर आप 5 मिनट नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई करो और वो अब आप ये सोचो कि अगर 3000 मिनट लॉस हुए, अगर 8 आवर्स की वर्किंग है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आपने घर बैठा के उतनी देर, मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 एम्प्लॉयज आएंगे उतने में, तो 5 एम्प्लॉयज को आपने फ्री में सैलरी दी और आपने उनका यूज भी नहीं किया, क्योंकि आप लेट पहुंचे, अरे सरी नहीं आए, तो एम्प्लॉयज का भी कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the management and the head of the management of any organization is disciplined, because the way the work you do and how you do, your employees follow you. So if you are not disciplined yourself, then your organization can never become disciplined. True. So what do you think is the future of Banaras Beats now, and in what direction do you plan to take the company? Exactly what I suggested you a little while ago. So we are not only doing beads now, we are doing beads, we are doing handicrafts, and we are doing a lot of trading of hobby and craft items. So basically we are becoming one-stop shop for the leading stores in the world. Like for example, we sell to Walmart, we sell to Michaels, Hobby Lobby, Joann's, Target, Five Below, Dollar Tree, Dollar General, all the leading stores, and a lot of stores in Europe and Australia. तो जो वो stores हैं, उनके लिए हम वन स्टॉप हॉबी एंड क्राफ्ट के सप्लायर्स बन रहे हैं। तो हम लोगों ने नॉट बीट्स के अलावा उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया है कंपनी में। पिछले स्पेशली लास्ट 10 इयर्स में तो बहुत ज्यादा किया है, और उससे हम लोग ने अपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत बड़ी कर ली है। सो एक तो उस तरफ एक्सपेंशन मोड में गए हैं। दूसरा, वी हैव बीन वर्किंग अ लॉट ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर, where our companies have done investments and done a lot of residential apartments across the city. We are also doing a lot of warehousing for multinational companies in Varanasi, especially on this road, on the road where your school is. And then if you see the news of yesterday, we have also just entered into a hospitality sector. We have done a tie-up with the Indian Hotels Company Limited, IHCL, which is basically wholly owned subsidiary of Tata Sons. Taj Hotels, Vivanta, ये सब उसी के अंडर में आते हैं। तो उसी का एक बजट ब्रांडेड होटल हम लोग लहरतारा फुलवरिया रोड पे लेके आ रहे हैं। तो परसों इनफैक्ट उसका भूमि पूजन था। सो वी आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। And my wife Shivani, she has also launched an online portal, Lemon. तो उसमें हम लोग domestically भी फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, आजकल के मतलब आई एम श्योर कि साड़ी और सूट पहनने वाले लोग बहुत कम हो गए। इनफैक्ट आप लोग भी हो तो घर पे कोई साड़ी या सूट नहीं पहनना चाहता, जनरली वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। तो उसके लिए बहुत इकोनॉमिकल वर्जन में हम लोग फैशन ज्वेलरी 300 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए या मैक्सिमम 1000-1500 रुपए तक भी इकोनॉमिकल रेंज में फैशन ज्वेलरी लॉन्च करी है। तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। तो
अभी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़े हैं और मेरा फोकस हमेशा से जो मैं आप लोग को एडवाइस कर रहा हूँ सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड, तो हम कहीं ना कहीं से बनारस बीट को एक्सपेंशन मोड सर्विस इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं. Sir, what is the biggest risk you've taken in life and how did it turn out? Biggest risk? See, the life is risk itself. I would say that working for retail stores was very risky because, in a way, a lot of credit has to be given. When you work with bigger stores and bigger customers, and no matter it is only through for your export, even for any domestic business you do, the more business you do with larger MNCs, your risk starts to increases. So you have, it has been very challenging to change yourself and adapt their method because, as I say that the bigger companies you work with, you have to follow their guidelines, which you may not like or which you may not prefer. So I would say that becoming flexible was my biggest risk. Like I was very rigid at the start of my career that I will do the things my own way. मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ये चीज चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी पॉलिसी है. लेकिन जब मैं वैसा कर रहा था तो मैं ग्रोथ पैटर्न पे नहीं जा रहा था. I was becoming stagnant, and probably that stagnant with inflation would have gone down. So making myself flexible to adapt and adapting others' requirements was probably the biggest risk because some of the clauses which I was not happy, I had to adapt themselves. But nothing as in a particular कि मैंने कोई बहुत I've been a very conservative person. I've never done anything which is very risky in my life. For example, a lot of people put a lot of money in share market, mutual funds, stuff like that. No, I have never gone the easy way to risk myself. So because there's nothing called easy money. So जिनको थोड़ा सा लाइफ में शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं और इजी मनी चाहिए होता है वो लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं. तो मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ. I want to there is a graph which goes in a particular degree of curvature. So I want to go at that pace. I don't want my company to go like this and then come like this and then go like this. So basically I've always chosen in my life a very steady path, calculative. हर कोई भी बिजनेस करेगा थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा सा मैंने I have done my businesses very conservatively with a lot of thought process behind. I would recommend to read a lot of newspapers, a lot of reading, मतलब what is being happening in the world and around, market कैसा behave कर रहा है, किस तरफ ट्रेंड्स हैं, तो बहुत वो रीडिंग से बहुत फर्क पड़ता है. सो इन शॉर्ट I would say that I've never been a very risky person in my life. फिर भी आपने पूरा आंसर दे दिया. हाँ, लेकिन मैंने दे दिया, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया कि मैंने कोई बहुत मेजर रिस्क लाइफ में नहीं ली है. लेकिन मैं इसमें अपने फादर से पीछे रहा हूँ. मेरे फादर ने अपने टाइम पे बहुत जंप्स लिए हैं और शायद उनकी रिस्क सक्सेसफुल हुई तो मेरे को एक बहुत एस्टैब्लिश्ड मतलब एक फाउंडेशन मिली ग्रो करने के लिए. जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे सबसे पहले आप फाउंडेशन बनाएंगे उसकी. जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी. सो मेरे फादर ने अपनी लाइफ में काफी रिस्क ली और बहुत स्ट्रॉन्ग उस रिस्क पॉजिटिव वे में गई और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी और उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को मैंने कैपिटलाइज किया अपनी लाइफ में. सो that is the answer about it. Yeah. So since you're in the business sector, so it's when you're in business, it's not a 9 to 5 job. You go 24/7. So how do you balance your work and personal life?
I try to do that. So I'm sure that as you see, there's a switch of air conditioner there or light switch. So there's a switch. When you leave this room, you will switch off those lights, right? So there is a kind of a switch which every human has virtually in their brain. So that's what again I've learned from my father. So when I step out of my office, I try to switch it off. So you know, if you want a very good personal and healthy life, and always and so that you can spend time with children, so there has to be a switch, because otherwise you cannot stop, because the mails will keep on coming, the phones will keep on buzzing. So not, I would say, only 2-3 years ago, or maybe in the last 4 years, probably later in my career, I activated that switch. पहले तो मैं 24/7 था, लेकिन sooner or the later I realized that this is getting a toll on my body and a lot of stress. In fact, at the age of 40, I became bald. Well, that also came as a genetic, but because of a lot of stress in work. So now when I reach office in the morning and then when I leave around 6:15 p.m., I put my virtual switch in the brain off. That's it. But then that switch gets activated again in the morning at 5:30. So, but when I am at home, I am trying to avoid any kind of business activities as long as it is something which is very urgent and needs my attention. So there will be exceptions, but more or less I switch off that virtual switch off. सर ये विजडम जो है मुझे लगता है कुछ विजडम तो हमेशा एज से ही आती है. आप चाहे जितना सीखे, चाहे जितनी बुक्स पढ़ लें, तो इस टाइप की जैसे स्विच वाली और ये सारी, आई डोंट थिंक समर इन द 20s and 30s उसको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि वो ये चीज कर सके. माहिर, मालूम है ये बात तुमने सही बोली कि विजडम विद एक्सपीरियंस आता है. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. There are a lot of things in my life जो जब मैं बिजनेस में आया मेरे को लगता था कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं. उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो. तो देखो, कुछ चीजें तो आपको विद टाइम ही आएंगी. चाहे मैं आपको कितना भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लूं, या आप फॉर एग्जांपल श्री रविशंकर जी के आप कितने भी वो सुन लो, या शिव खेरा के मोटिवेशनल थॉट्स आप सुन लो, लेकिन वो एक कान से सुनोगे, एक कान से निकल जाएंगे, आपके दिमाग से पास आउट हो जाएंगे. लेकिन जब आप उस फेस में आओगे तो आपको अपने आप वो चीज आएंगी. लेकिन सुननी चाहिए. उससे क्या होता है ना कि एटलीस्ट यू आर रेडी. सो व्हेन यू विल एक्सपीरियंस दैट, यू कैन रिलेट कि हाँ वो ऐसा बोलते थे तो सही बोलते होंगे. तो मतलब उस समय सारी चीजें याद आ जाती हैं. तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं. लेकिन मैं आप लोग स्पेशली यंग स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि कभी भी ना अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करना कि वो ये कर रहा है, उसका ये तो बड़ा अच्छा जा रहा है, उसका ये तो बहुत अच्छा जा रहा है. द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. बहुत पुराना प्रोवर्ब है, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रू होता है. मेरी आप बात को लाइफ में मानना कि अगर वो आदमी क्या कर रहा है, उसमें वो किस चीज से गुजर रहा है, उसकी इंटरनल क्या इंफॉर्मेशन वो वही जानता है. वो दुनिया के सामने बड़ा अच्छा दिखा रहा है. आप अपने फोन में 100 फोटो खींचोगे, जो बेस्ट होती है ना उसी को फेसबुक पे अपलोड करोगे या इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे, मतलब फिल्टर करके. तो दुनिया फिल्टर देखती है. तो क्योंकि दुनिया फिल्टर क्यों देखती है? क्योंकि जिसने वो पिक्चर डाली है वो वही दिखाना चाहता है. तो आपको दूसरों का फिल्टर्ड चीजें दिखाई देती है लाइफ में, चाहे वो आपके बिजनेसेस हो या कुछ भी नया काम करो. तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, कभी दूसरों को मत कोरिलेट करो. अपना सोचो, व्हाट यू फील फ्रॉम योर इंटरनल हार्ट कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड डू दैट. डोंट सी कि कौन क्या कर रहा है. ठीक है, आप हो सकता है आप आज पीछे हो, उससे भगवान चाहेगा तो साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद आप उसके बराबर हो जाओगे, उससे आगे चले जाओगे. So if you have wisdom in yourself and if you have self-belief in yourself, you will automatically reach where your heart desire. So young बच्चों में क्या होता है कि उन्हें patience नहीं होता कि immediate result चाहिए. There is nothing called immediate result. So थोड़ा सा patience रखना हमेशा लाइफ में,
और अपने आप अपने सेल्फ बिलीफ पे वो ध्यान देना। दूसरा क्या कर रहा है उसको कभी अपने अपने वर्क को उससे कंपेयर मत करना। सर, हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स एंड सेटबैक्स? हर किसी की लाइफ का पार्ट है, आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? फेलियर्स इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि फेलियर्स नहीं आए हैं अपने बिजनेसेस में, स्पेशली जब आप कोई चीज पे बहुत मेहनत करते हो और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, या कोई कंप्लेन आ जाती है जिसमें आपकी गलती नहीं होती, अनकंडीशनल मतलब नोइंगली या अननोइंगली आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं मिलता, सो रिएक्ट नहीं करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आई या कोई सेटबैक आया, तो जब मैं उसका, एक तो मैं सारे कम्युनिकेशंस मेल्स पे करता हूँ, तो जब मेल आता है तो उसको पढ़ता हूँ और उसको टेबल में साइड में रख देता हूँ। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करते हो ना उस प्रॉब्लम को या सेटबैक को, तो आप अंदर से और एजिटेट होने लग जाते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे को कोई ऑर्डर दिया और मैंने उसको बहुत मेहनत करी, बहुत क्रिएट किया, उसके बाद आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो मैं फिर आपको कुछ लिखूंगा, लेकिन जब मैं आपको कुछ लिखूंगा ना तो वो मेरा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा, क्योंकि मेरा ब्रेन बहुत सेटबैक मोड में चला गया है। तो उसको मैं साइड कर देता हूं और 2 या 3 दिन बाद उसको टेकअप करता हूं। तो कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो इमीडिएटली कभी रिएक्ट मत करो, या कोई फेलियर आए ना रिएक्ट मत करो, उसको साइड में रखो। और दूसरा काम, अपनी लाइफ नॉर्मल चलने दो, सोचो ही मत। मतलब सोचोगे तो हो, मतलब थोड़ा बहुत तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में आएगा, आपको ट्रबल कर रहा होगा कि वो पड़ा हुआ वो प्रॉब्लम है और आपको डिमोटिवेट कर रहा होगा, लेकिन 2-3 दिन आप उस चीज को छोड़ दो और आप देखना भगवान अपने आप आपके दिमाग में कोई ना कोई, जब आपका माइंड पीस में जा रहा होगा ना कोई उससे ओवरकम करने का एक कोई रास्ता भगवान आपको निकालेगा, और प्रॉब्ली आपको ब्रेन ही कोई आइडिया देगा कि आप उसको कैसे ओवरकम कर पाओ। लेकिन इमीडिएटली मत ओवरकम करने की कोशिश करना उसको। ठीक है, सेटबैक आ गया, फेलियर आ गया, उसको रिसीव करो प्यार से और साइड में रखो और लीव इट फॉर 2-3 डेज। क्योंकि मैंने अपनी यंग लाइफ में बहुत, मतलब जब कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ तो बिजनेसेस के पार्ट है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में बहुत कहीं सेटबैक्स आए हैं, हमने कोई चीज ट्राई करी है अचीव करने के लिए, नहीं मिल पाई है, या की है, या कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है, उसमें फेलियर हो गया है, या उसमें क्वालिटी इश्यूज आ गए हैं, या XYZ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, या किसी कंपनी के साथ आप बहुत सारा काम कर रहे हो और वो कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में चली गई है, तो उसको साइड कर दो। जब दिमाग पीस में होगा ना, अपने आप आपको उससे ओवरकम करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। इमीडिएटली हैंडल मत करना। मोर टाइम और मोर मनी, 2 ऑप्शन हो तो क्या चूज करेंगे? मोर टाइम, मोर मनी, आई वुड से टाइम। ऐसा क्यों? Life is too short to do a lot of things. मनी ऐसा नहीं, वो ऐसा लोग बोलते हैं ना कि आज मैं तेरे को अगर ये बात बोलूं कि मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप लोग सब लोग ये सोचोगे कि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि भगवान ने मेरे को दिया है तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बट एक दोनों का ना म्यूचुअल बैलेंस होना चाहिए, और लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। कोविड के बाद स्पेशली मेरा एक कजन ब्रदर था, यंग एज 41, 2 यंग डॉटर्स, मेरे सगे चाचा का बेटा आकाश गया, ही पास्ड अवे, लेफ्ट बिहाइंड 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स एंड उसकी वाइफ भाभी। तो ऐसा लगता है कि ना कि इतना ज्यादा टिपिकल वर्ल्ड में जिसके अंदर इतने सारे वायरसेस, इतनी सारी हेल्थ इश्यूज, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो एंड यू विल नॉट रियलाइज कि व्हेन आफ्टर स्कूल की कैसे टाइम बीत गया। मैं सोचता हूँ कि मैं 41 हो गया, मेरे को तो अभी याद है कि मैं स्कूल में मेयो में घूम रहा था, शॉर्ट्स में,
स्पोर्ट्स खेल रहा था, स्क्वॉश खेल रहा था, आई वॉज अ हॉर्स राइडर, आई यूज टू प्ले पोलो एंड फिर मेरे को याद है कि मेरे को लगता था अभी तो मैं इंग्लैंड में था, स्कूलिंग कर रहा था, लेकिन कैसे 20-25 साल बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। तो मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ इज रनिंग अवे एंड ऑन एन एवरेज मतलब क्या अगर बोलते हैं 60 का रिटायरमेंट, क्या मैं 19 ईयर्स बाद रिटायर कर रहा हूँ? मतलब ऐसा लगता है कि मैं 41 का हो गया, 19 साल बाद मैं रिटायर कर जाऊंगा, अगर आप स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज मानो तो। सो टाइम फ्लाइज। सो ऑफ कोर्स नाउ प्रॉब्ली मैं पहले नहीं बोलता, जब मैं यंग था तब बोलता मनी, लेकिन अब बोल रहा हूँ कि यार टाइम चाहिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए। मेहनत करोगे तो पैसा तो आ ही जाएगा, और लेकिन डिसिप्लिन वे में मेहनत करो। वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। प्रैक्टिस नहीं बनाती मैन परफेक्ट, परमानेंट प्रैक्टिस, मतलब परमानेंट डिसिप्लिन, परमानेंट वर्किंग हार्ड। ये नहीं कि आज 4 दिन किया फिर 2 दिन छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी, भले ही वो कंसिस्टेंसी स्लो हो, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। स्लो होगी तो स्लो ग्राफ आएगा, तेज होगी तो तेज ग्राफ आएगा। लेकिन 3 दिन खूब रगड़ के मेहनत कर लिया और ऊपर पहुंच गए, और फिर 2 दिन 4 दिन फिर मेहनत नहीं कर नीचे आ गए, वो नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत होता है। ये सर मोस्टली होता है जब मैं डाइट पे होता हूँ। 3-4 दिन कुक कर लिया, 5-6 डेज ऐसा मतलब एंजॉयमेंट की खत्म सर। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है अभी। यू लॉस्ट वेट पहले से, आई थिंक 1.5-2 years से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा था ना, कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था। अब ये चीज रियलाइज भी होती है, शिवानी इनफैक्ट मेरी वाइफ मेरे को हमेशा टोकती भी रहती है कि उसके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि अगर आप चाहे कितनी भी मेहनत करो लाइफ में, लेकिन आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो और एक चीज मैंने नोटिस करी, जिस दिन सुबह एक्सरसाइज कर लो उस दिन आपका बॉडी पोस्चर यूं होता है, और 3-4 दिन एक्सरसाइज नहीं करो तो आपका बॉडी पोस्चर यूं हो जाएगा। मेरा तो परमानेंट पोस्चर यही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तू 3 दिन एक्सरसाइज करे, यू फील बेटर फ्रॉम इनसाइड, योर मेंटल फ्रेम, योर यार मैं कोई आई डोंट वांट टू गिव यू एन काइंड ऑफ अ लेक्चर, बट या कोई भाषण या कोई सीख नहीं देना चाह रहा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करके काम करते हो ना, थोड़ा सा आप अच्छे से वर्क कर पाते हो, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है कि आप ये कर लोगे, मतलब फिट महसूस करते हो। सो या हेल्थ इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना ही करो जितना कर पाओगे कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि 4 दिन करो 2 दिन छोड़ दो। अरे मैं बोलता हूँ 20 मिनट ही करो, लेकिन कर लो। अंकल की इतनी बातें हुई हैं अभी इस पॉडकास्ट में, बट दैट वन थिंग जो अंकल से सीखी, जो आप चाहते हैं हम लोग को भी कि हम लोग को भी पता होनी चाहिए, दैट वन थिंग। यार मैंने काफी चीजें तो उनकी ऑलरेडी पूरे ड्यूरिंग द एंटायर कन्वर्सेशन बहुत सारी चीजें बोल दी, तो रेपिटेटिव हो जाएगा, लेकिन his discipline is something which is hats off. For example, he does yoga no matter what for 30 minutes to 40 minutes every day. I mean, I've been seeing him from last 45 years. He's 78 right now, and touch wood, he is very fit from his age standards. Obviously, थोड़ी बहुत तो aging आती है with the human body, वो सबके साथ आती है, लेकिन in comparison, he is quite fit because he's very disciplined. I am not so much disciplined. So I would say being disciplined is the best thing what my father has. He has been disciplined all his life, going to office dedicatedly at the same. Now he has relaxed. He reaches around 12 in the noon and works for 2-3 hours. He's still working. But लेकिन अब समाज का काम काफी करते हैं. He's a national president for Matru-Vaish Samaj across India. So he does a lot of charity work. So he does all that kind of work. But he has always life very disciplined and very straightforward. मतलब कभी कोई चीज अपने दिल में नहीं रखते. अगर आपकी चीज अच्छी नहीं लगेगी, आपके मुंह पे बोल देंगे. आपको सुनने में बहुत बुरा लगेगा, बट उनके मन में कुछ नहीं होगा. वो he's fine. So that's what I have learned from him. So मेरे को भी लोग यही बोलते हैं कि I am very outspoken. If I do not like something about anybody, I will. अगर माहिर की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, मैं उसके फेस पे बोल दूंगा.
I do not try to be politically correct, never. That is absolutely true. And that's one thing we all love about you also. I cannot be politically correct कि मैं इसको घुमा के अच्छे से बताऊं जिससे कि सुनने में अच्छा लगे और तेरे को मैसेज पहुंच जाए. मैं उस तरीके से बात नहीं कर पाता. If I like something, I will say on your face. If I don't like something, I will say it on your face. And I'm happy from inside कि मैंने बोल दिया. So I don't take baggage from people. कि मैं कोई ग्रज लेके किसी के लिए कैरी कर रहा हूँ. वो नहीं होता मेरे से. किसी को अच्छा. And some people do not like me for that reason. Some people love me for that reason. You know. But that is my personality. And if I have friends because they have accepted me the way I am, not because the way I want to present in front of them. So that is same with my father. वो किसी भी अधिकारी, किसी भी मतलब चाहे वो कोई भी लेवल का अधिकारी हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स में हो, अगर जो सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं. So that is and he has worked hard. He has worked hard all his life. He has faced a major downfall once in his career, and then he has again bounced back. So he has worked hard by being disciplined, and I'm trying to win the competition from him. अभी बहुत पीछे हूँ उनसे, लेकिन वही मैं बोलता हूँ कि उनका आशीर्वाद रहा तो कभी ना कभी उनको मैच करने की कोशिश करूंगा या उनके आधे तक भी पहुंच जाऊंगा तो भी लगेगा कि द जॉब वेल डन. सर इस क्वेश्चन का अदर साइड ऑफ कॉइन, ठीक है, अदर साइड ऑफ दिस कॉइन, दूसरा क्वेश्चन जो मेरा इसी के ऊपर है, लाइफ लेसन आप क्या किसी को देना चाहेंगे? दैट वन एडवाइस जो आप देना चाहेंगे हम लोगों को. किसी से घबराना नहीं. लाइफ में किसी से नहीं डरना. कुछ भी हो जाए, कितना भी स्ट्रेस आ जाए, कभी घबराना मत. और दूसरा, अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा करना कि पेपर पे बहुत स्ट्रांग रहना. ये सर एकदम सॉलिड एडवाइस है. पेपर पे बहुत स्ट्रांग रहना मतलब आप किसी से कोई बिजनेस करते हो, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, कोई चीज दुनिया में वर्बल नहीं होती. वर्बल की जीरो वैल्यू है लाइफ. मैंने आपको ऐसा कहा था या मैंने आपको ये बोला था, वो तो डिक्लाइन कर देगा कि मैंने तो आपने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था. आप उसको प्रूव कर ही नहीं पाओगे, आपके पास एविडेंस ही नहीं है. सो वी कीप एवरीथिंग इन योर लाइफ इन राइटिंग. मेल कर दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, लेकिन लाइफ में कोई भी काम करो, स्पेशली पर्सनल लाइफ की भी मैं बात नहीं करूंगा. पर्सनल लाइफ में ये चीज इंप्लाई मे भी नहीं होती है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी करो, राइटिंग में करो. कोई चीज वर्बल मत करो. अगर आपके पास राइटिंग में कोई चीज है, कोई आपको लेट डाउन नहीं कर सकता. लाइक हमारे जब हम लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं, जैसे जूम कॉल आजकल बहुत होती है, टीम्स कॉल बहुत होती हैं, तो कहीं कहीं चीजों को रिकॉर्ड करना की परमिशन होती है, कहीं कहीं चीजों को नहीं होती है. तो हम लोग के ऑफिस में क्या है, उसकी एक मिनट्स बनती हैं कि क्या हमने डिस्कस किया. मिनट्स ऑफ द मीटिंग विच सेज कि a Zoom call was done on say 15th of April at 9:30 a.m. and this is all what we discussed. This is all what we discussed. और उसको मेल कर दिया. तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग विद यू टू सपोर्ट इफ एनीथिंग गोज अदरवाइज. और ये हिंदुस्तान की एक बीमारी है कि हर चीज मौखिक होती है, वर्बल होती है, और लोग राइटिंग में नहीं देना चाहते. आपने किसी से कोई चीज खरीदी, आज आपने सपोज करिए कैमरा खरीदा, तो आपने उससे एग्री किया था कि आप इतने में देंगे, इस प्राइस में देंगे, तो उसको राइटिंग में भेज दो. फिर जब आप क्या हुआ, उसने बोला कि भाई ये कैमरा 25,000 का है, आपने उसको 25,000 पेमेंट कर दिए, तो बोलेगा नहीं मैंने तो आपको 27 बोले थे, आप 25 कैसे बोल रहे हो? वो पलट गया. 25,000 रुपया बेच चुके उसको एडवांस, अब वो पलट गया तो क्या कर लोगे? लेकिन राइटिंग में होगा. तो ये मैंने बहुत एक ऐसे बहुत नॉर्मल से एग्जांपल दिया. तो कीप एवरीथिंग इन रिकॉर्ड. मैं सर की एक स्टोरी बताऊं आप लोग को. हम लोग नेपाल गए थे, ठीक है. सर की तबीयत भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी खराब हो गई थी,
लेकिन नेपाल में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब कहते हैं सर फुल टाइम, ही नोज, मैं एकदम एग्जैक्ट सच बता रहा हूँ, पूरे टाइम इनकी मीटिंग्स चल रही थी, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, और ये तक हो गया था कि हम लोग को टैक्सी करने के साथ हम लोग जो इनके एम्प्लॉय सब लोग मिलने आते हैं, हम लोग उनके साथ राइड लेके उन लोग से इधर बाहर जा रहे थे. सो वी वर ऑन हॉलीडे बट ही वॉज वर्किंग फुल टाइम. यस, लेकिन वो पुरानी बात हो गई. मैंने तेरे को बताया कि अब मैंने वो बटन एक्टिवेट कर लिया है. यही 1.5 ईयर पुरानी बात है. कभी कभी वो डीएक्टिवेट भी करना पड़ता है, लेकिन उस समय एक ऐसा था, लेकिन जनरली मैं इसको अवॉइड करता हूँ. लेकिन यस, मेरा एक ये भी मैंने शायद अपने फादर सीखा है. मेरी वाइफ भी कंप्लेन करती है. अब जैसे कहीं एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी हॉलिडे पे गए महीने में एक बार, आई हैव गॉट 2 young kids. My daughter, she's 13 and my son is 8. तो अगर हम लोग किसी कंट्री में गए तो वहां पर अगर हम किसी बीट शॉप या किसी हैंडीक्राफ्ट शॉप के बगल से गुजर रहे होते हैं तो मेरी नजर में वहां पर रुक जाता हूँ, उसका कार्ड लेने की कोशिश करता हूँ. सो आई ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, दैट यू नो कि अब आप आए हो, सामने दिख ही गया, या आप इस जगह दोबारा नहीं आने वाले हो, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ऑफ कोर्स आई एम इनबॉर्न ह्यूमन, मतलब बिजनेसमैन, तो मेरे खून में है कि मैं कुछ चीजों को चाह के भी मतलब अवॉइड नहीं कर पाता. हालांकि वो बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट है. There's a little things that count. ठीक है, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम लोग सबके साथ बैठ के ये नोटिस कर रहे हैं कि सिद्धार्थ सर जो है, सिद्धार्थ भैया इतनी मीटिंग्स ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, बट देन इट इज सो मोटिवेशनल, इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है हम लोग के लिए. मैं और मानिक भाई हम लोग साथ रूम शेयर करते हैं, दैट्स व्हाट, मतलब पूरे टाइम यही बात कर रहे थे. ये देखो हम लोग सबके साथ वेकेशन पे आए हैं, सिद्धार्थ सर को देखो, सिद्धार्थ भैया को देखो. नहीं यार, थोड़ा सा है. मैंने सोचा था आपसे कभी बात शेयर करूंगा, सो आई शेयर इट ऑन पॉडकास्ट ओनली. No, that's wonderful, but you know, यही बात शेयर नहीं करता क्योंकि वो इतनी अच्छी बात मैंने बटन की बताई तो उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर गई. लेकिन बट या नहीं, मतलब डेली लाइफ में तो नहीं करता ना, ऑफ कोर्स वहां पे, बिकॉज आप कभी कभी जैसे नेपाल कितना ही आपको जाना होता है, जब भी गए यू वांट टू सी आपका क्या बिजनेस कैसा चल रहा है, चल रहा है. नेपाल से मेरा काफी बिजनेस होता है. नेपाल इज वेरी लाइक अ लॉट लाइक इंडिया, जहां पर हाथ का बहुत अच्छा काम होता है. सो इसीलिए उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. या ठीक है, आपके ऊपर अगर कोई मूवी बनती है, आप क्या चाहेंगे, कौन सा एक्टर आपको प्ले करे? यार मैं मेरे ख्याल से मैं दिल से मैं चाहे इंग्लैंड पढ़ाया और साल में 4 महीने तो मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर से एक बनारसीपन नहीं हटा पाता. मेरे सारे दोस्त मेरे को इसी चीज के लिए बोलते हैं कि ये बंदा कहीं पर भी चला जाए, 4 महीने इंडिया के बाहर रहता है. जब बाहर जाता हूँ तो उनकी तरह मेरा एक्सेंट भी हो जाता है. इंडिया आते हैं तो वो एक्सेंट बदल जाता है, स्पेशली अमेरिका में इतना जाता हूँ. तो मेरा जो ट्रू नेचर है वो बनारसी है, लेकिन एक दूसरा वर्जन है, वो भी एक स्विच के साथ ऑन हो जाता है जब बाहर जाता हूँ. तो आई थिंक सो पंकज त्रिपाठी वुड बी द राइट चॉइस. यंग एक्टर बोलेंगे? नहीं, वो क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा, प्रॉब्ली ये तुम साहिल और सौरभ आनंद से पूछो, उत्कर्ष से पूछो, हीरो तो सर अपना को सलमान खान ही बोलेंगे. नहीं बोलो सलमान खान बोलेंगे, लेकिन वो मेरे कुछ इसी तरीके का कुछ बोलेंगे. मतलब आई थिंक सो यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू मेरे दोस्तों से, साहिल भैया लोगों से. हाँ, उन लोग से पूछो, साहिल से पूछो, सौरभ, आनंद, उत्कर्ष, इन लोगों से पूछो. ये लोग आप मेरे ख्याल से या ये लोग ज्यादा अच्छे से बता. मैं आमिर खान बोलता हूँ, मेरा वोट तो आ जा रहा है. अरे वाह, that is a lot of upgrade for me. Thank you so much, भैया. Thank you so much, sir. Thank you so much for doing this. Thank you, आपने टाइम दिया. Thank you. And we were planning this for a very long time. Finally, ये हुआ, and I'm so glad. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir.